नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा वनडे कंपटीशन से लेके सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो एक कंपैरिजन और इवैल्यूएशन मेथड है, मैं उन दोनों का यूज कर रही हूँ। आई एम नॉट लाइक स्पीकिंग हेयर लाइक वॉट एवर इट इज रिटन एज इन द न्यूज पेपर। सो वंस यू विल लिसन दिस वीडियो completely, it will be very beneficial for your competitive exam, right? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी में हम इस वीडियो में कवर क्या करेंगे? द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स क्या थी और कहाँ पे बच्चा सफ़र करता था। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एंड देन वी विल टॉक अबाउट चैलेंज ऑफ एनईपी 2020। मतलब इसके क्या चैलेंजेस है, क्योंकि हमें मेंस आंसर राइटिंग में वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, वी हैव टू टॉक अबाउट both the pros and cons of the particular topic. Okay, so guys, please listen this video till the end, and if you are new here, please do subscribe and share it to your friends. Okay, so let me start the topic. So guys, the first thing is education. Education है क्या? हमारे जो इंडियन सोसाइटी है ना, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो पहले एजुकेशन पॉलिसी बनी 1968 की बनी, 1986 में बनी, और अब 34 साल के बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन है क्या? गाइस, एजुकेशन डजंट मीन you have to complete the schools, the college and universities, and you will get a certificate and you are the educated one. The real purpose of education is important to know about. The real purpose of education is always building a step for the society, and it is very important. And you see, whatever the limitation in the old education policy, that is revitalized by putting up some the amendment in the syllabus. Even you can say earlier in the third class there was no environmental study, but at present environmental study is a mandatory for the school childrens. Okay, so if we are talking about the very earlier, there was no any smart method for to learn the mathematics and science, but at present in a preparatory method there are the smart learning way for the kids to know about identification of numeracy and many things. So this is what, when one system is become to be made and it would implement, then the limitation also comes from the society. Okay, हमेशा लिमिटेशन किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद आती हैं, and the government is responsible for the centralized education system, and no doubt our government did well, and whatever the limitation comes, so this national education policy 2020 is responsible to overcome the previous limitations. And as well as, no doubt, whatever the limitation in this policy we will see, and in the next education policy, that will also be overcome by the government and with the revitalizing efforts of the society. Okay, so guys, first of all, education से रिलेटेड एक जो इथिक्स है, मोरालिटी है, नेशन बिल्डिंग है, नेशनलिज्म है, दैट शुड बी इम्बाइब विद इन द किड्स, and that imbibement actually cultivate the personality, the character of a person. And if there is a character of a person, then ultimately it can become for the nation. So ultimately for the nationalism, it is not like you have to clear out the degree and certificates, you are become the nationalist. Okay, so real purpose of education is important. So guys, अब मैं सीधा सीधा लाइक जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं, यू कैन बिगिन योर आंसर विद द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में साथ साथ बताती भी रहूंगी कि आप ये मेंस में डाल सकते हैं, मेंस में नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट डू यूज द कंपेरिजन मेथड. ठीक है, मैं कंपेयर मेथड करती हूँ. सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, एंड उसके साथ साथ मैं करूंगी कंपेयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का.
जिससे ये है कि हर बच्चे को एक क्रिटिकली एनालाइज अपने आप ही हो जाए और बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो गाइस, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी प्लस ऑल एजुकेशन पॉलिसी के प्रॉब्लम्स, ठीक है। एनईपी 2020 प्लस एनईपी के प्रॉब्लम्स, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के। गाइस, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो ओल्ड एजुकेशन में होता क्या था, 10+2 सिस्टम होता था, ठीक है। 10+2 सिस्टम होता था, 10वीं करी, उसके बाद 12वीं करी, फिर उसके बाद बच्चा ग्रेड में एंटर होता था। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। अगर प्रोफेशनल है तो एआईसीटी होती थी, यूजीसी, ठीक है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटीज। अब हम एनईपी की बात करें तो सबसे पहले एनईपी का जो पर्पस है वो इंडिया को एक सुपर ग्लोबल पावर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बनाना है, क्योंकि एजुकेशन किसी भी नेशन का रूट होती है। अगर आपके देश में एडुकेटेड नहीं है, सी द यूएसए, व्हाई द यूएसए इज यूएसए, व्हाई द यूएसए हैव द हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड, because the USA, the kids are dedicatedly themselves towards the science and technology. Even the 6th class student is dedicatedly for the codings and all. The scientific principles are for there, and the nationalism is imbibed with every citizen. Okay, but if we are talking about here in India, see, I am doing comparison. Being a educationist, my duty is to do the critically evaluation. I am not criticizing anyone. We are just trying to overcome the things, okay? And here, ये आपको first point समझ में आया? The 10+2 system, as earlier we had done, and then you will enter into the graduation in the old education. Then Ministry of HRD, AICT or UGC. These are responsible for the respective professional, academic and for the all human resource, okay. But if we are talking about the national education policy, the main purpose of this national education policy is to make the India as a super global power in the field of education. And Ministry of HRD is converted into the Ministry of Education. This Ministry of HRD is converted into the Ministry of Education. And second thing is UGC plus AICT, that all accumulated, इन सबको एक कर दिया, मतलब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई है, and the Ministry of Education is responsible for that, okay. अब कोई भी प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, सब एक अम्ब्रेला के अंदर आ गया है, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी किस में बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, पहले वोकेशनल जो क्लासेस होती थी वो होती थी 11th क्लास से स्टार्ट, वोकेशनल क्लासेस 11th क्लास से स्टार्ट होती थी, ठीक है। बल्कि इसमें अब क्या किया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें वोकेशनल की क्लासेस जो हैं वो 6th क्लास से ही ऑनवर्ड्स कर दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कोडिंग, बच्चों को कोडिंग 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बात किया जो ये पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम 10+2 पे बेस था, ठीक है। ये जो नया वाला सिस्टम है 5+3+3+4 वाले सिस्टम पे बेस है। अब 5 का मतलब क्या है, एज ग्रुप कितने, 3 से 8 साल, ठीक है। और उसके बाद 3 क्या है, 8 से 11 साल, ठीक है। 11 से 14 साल, 14 से 18 साल, ठीक है, 14 से 18 साल। तो ये जो 3 से 8 की एज है, दिस एज इज कॉल्ड एज अ फाउंडेशनल स्टडी, मतलब जो बच्चा इसमें प्री स्कूल लेवल तक का पढ़ेगा वो फाउंडेशनल स्टडी करेगा। इसके बाद हम बात करें 8 से 11 साल की एज में, तो बच्चा एक तरह से आपका प्रिपरेटरी लेवल के लिए प्रिपेयर होगा, प्री लेवल के लिए, प्री स्कूलिंग लेवल के लिए यहाँ तक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर मिडल लेवल, मिडल के बाद 12th के बाद 11th के बाद ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन 4 साल, ठीक है। तो
तो 14 से 18 साल हायर के लिए हो गया, ठीक है। तो इसमें जो कन्वर्जन किया गया 5+3+3+4 से कन्वर्जन है, जबकि इसमें क्या कन्वर्जन था, 10+2 है, फिर उसके बाद 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती थी। और पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी में गाइस होता क्या था, मतलब 10वीं के बाद ही बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता था। और गाइस जो इवैल्यूएशन है ना कहीं कोई बच्चा, हर बच्चे का देखो यार सिस्टम अलग अलग होता है, कि कोई बच्चा बोलने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं भी 10-12 साल से पढ़ा रही हूँ, सो आई कैन फील द स्टूडेंट। तो कुछ बच्चा लिखने में अच्छा होता है, कुछ पढ़ने में अच्छा होता है, और कुछ बच्चा लाइक एक्टिविटी कर करके सीखता है। हर तरह का स्टूडेंट अलग है। हालांकि हम लोग तो मैच्योर बच्चों को पढ़ाते हैं, बट स्टिल मैच्योर बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, उन बच्चों के साथ भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बच्चे सुन के समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चे लिख कर देखते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना वे है, आप सबकी कैपेबिलिटी को एक तरह से नहीं आंक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, मतलब जो ओल्ड एजुकेशन है, इसमें नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब whosoever get the highest marks in the 10th-12th class that become the superhero in the society, ठीक है। तो अब इससे होता क्या था भाई, जो जो बच्चा नहीं रट पाता है, या जो बच्चा बैक बेंचर रहा है, या जो बच्चा एजुकेशन शिक्षा में उतना ज्यादा उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, वो बच्चा अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। और सोसाइटी में डिवीजन बच्चे के साथ नहीं, इवन एट द एंड ऑफ द लाइफ उस बच्चे को ये फेस करना पड़ता था। क्योंकि लोग कहते थे, लोग बचपन में ही कहते थे कि भाई ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और आगे चल के खुदा ना खास्ता बच्चे ने कुछ अच्छा नहीं भी किया तो भी लोग बोलते थे ये तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, ये नहीं कर पाएगा। सो समवेयर इट पुट द बर्डन ऑन द माइंड ऑफ अ किड्स। तो कहीं ना कहीं हम उसकी अदर एक्टिविटी को दबा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्किंग सिस्टम था ना, देखो मेरा यहाँ पे पर्पस प्रॉब्लम बताना भी है, ठीक है। तो मार्किंग सिस्टम जो था भाई, वो सिस्टम बहुत ही रिजिड और बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। द पर्सन हु गेट द हाइएस्ट मार्क्स दैट बिकम द हीरो, द स्टूडेंट हु गेट द लोअर मार्क्स दैट बिकम द एविल, ठीक है। तो ऐसा होता था, और ये बच्चे सोसाइटी में फेस करते भी थे। दिस वॉज द थिंग। अच्छा, रोट लर्निंग होती थी। रोट लर्निंग का मतलब क्या है, लाइक रटना। क्योंकि जिसने अच्छे से लिखा है, ग्रेड में क्या होता था कि भाई अच्छे से रट लिया, ठीक है, तो मार्क्स मिल गए, अच्छे से नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कम है। तो समवेयर वो बच्चा कहीं ना कहीं क्लास में तो हीरो बन सकता है, बट आगे चल के नहीं, ठीक है। सो समवेयर द रोट लर्निंग शुड बी डिस्करेज, जबकि यहाँ पे रोट लर्निंग की ऐसा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रोट लर्निंग भी इशू है। अब इसका पुराना अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट भी बनाया, आर्टिकल 21 ए के अंदर, और आर्टिकल 21 में भी एजुकेशन की बात करी, और उसके बाद तो 86 अमेंडमेंट 2002 के बाद 21 ए भी बना दिया, ठीक है। डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 45 that goes towards the pre आंगनवाड़ी एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो भाई सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, मिड डे मील हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा जो गवर्नमेंट का पर्पस है, दैट इज फॉर द सेक टू एनकरेज द मोर इनरोलमेंट। ये जो मिड डे मील योजना है, एसएसए है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 45 है, भाई इसका पर्पस क्या है? The main purpose is what? The main purpose is to increase the enrollment. जो बच्चों के एडमिशंस हैं, उन एडमिशंस को बढ़ाना। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसी चीज के लिए स्कूल लेवल पे तो भाई आप ये जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, साथ साथ अपने आप लिखते रहना कॉपी में, ठीक है। स्कूल लेवल पे तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 100% करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है 2030 तक, ठीक है। और अगर हायर एजुकेशन की बात हो तो 2035 तक 50% का एनरोलमेंट रेशो बढ़ाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम बनाया है, ठीक है। स्कूल लेवल तक अगर बच्चा है 2030 100%, और हायर एजुकेशन है
टिल द 2035 गवर्नमेंट का है कि 50% तक हम इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ गाइस, जो बच्चा ओपन स्कूलिंग करता है ना, इग्नू वगैरह करता है, प्राइवेट से पढ़ता है, या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वही एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट से एजुकेशन दिला देते हैं, या किसी भी कारणवश बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाता है, तो आपको पता है गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा है कि जो बच्चा पुराना मतलब ओपन एजुकेशन से प्राइवेट ले रहा है उसको मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर करना, तो ये भी गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन है। अच्छा, रूट लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे रूट लर्निंग का कि भाई इतने मार्क्स होंगे, ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं कही है। और यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है वोकेशनल की शिक्षा 6ठी क्लास से दे देंगे, कोडिंग बच्चे को 6 क्लास से कराना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन अपने आप रीजनिंग कोग्निटिव पावर बड़ी हो, ठीक है, बढ़े। तो क्योंकि जो टीचर्स लोग हैं, जो लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, जिन्होंने बीएड पढ़ा हुआ है, उन्हें पता होगा पेडागोजी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कोग्निटिव पावर की बात होती है, और कोग्निटिव पावर बच्चों के बढ़ाने की बात होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग कोग्निटिव पावर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उस समय पे अगर उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए वो ज्यादा अच्छा है, और उस समय पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी इम्बाइब्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें एकेडमिक और करिकुलम एक्टिविटी, एकेडमिक और करिकुलम एक्टिविटी इन दोनों को अलग अलग रखा गया, और जबकि यहाँ पे क्या है, एकेडमिक प्लस में करिकुलम एक्टिविटी दोनों को एक साथ इम्बाइब किया गया है, इसमें अलग नहीं किया गया, इसमें इम्बाइब ही किया हुआ है कि दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। तो कुछ अलग अलग नहीं रखा गया इसमें, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये होता था एकेडमिक अलग है, एक्स्ट्रा करिकुलम अलग है। जबकि अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ये रिपोर्ट कार्ड जो बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल बच्चा लर्निंग में कैसा है, गेम्स में कैसा है, स्पीकिंग प्रेजेंटेशन में कैसा है, या बिहेवियर में कैसा है, एटीट्यूड में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कैसा है, कोडिंग में कैसा है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में बच्चा पार्टिसिपेट लेता है नहीं लेता, एकेडमिक्स में कैसा है। सो दिस इज द कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट, और यही जरूरत है actually this new education policy, it is very student friendly, it is more student friendly if it implemented completely, ठीक है। और इसके अलावा हम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो भाई ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता था, भाई आर्ट, साइंस, कॉमर्स बच्चा 10th के बाद लेता था। अगर आर्ट ले ले तो बेचारे की रिस्पेक्ट कम होती थी, कॉमर्स ले रहा है तो थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई, साइंस लेता है तो द बच्चा विल गेट द हायर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, द सोसाइटी इवैल्यूएट द पीपल लाइक दिस, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होता क्या है कि इसमें जो रिकमेंड है, ठीक है, कि भाई आर्ट, साइंस और कॉमर्स है, दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर इक्वल। और सबसे बड़ी बात तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, साथ साथ लिख भी लीजिएगा, कि जो एमफिल है, एमफिल को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और उसी की जगह पे जो ग्रेड है और पीएचडी है, ठीक है, ग्रेड और पीएचडी इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर दिया। इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब है दोनों को एक मिला दिया है, ठीक है, इस तरीके से सिस्टम बनाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं और ओल्ड की बात करूं तो मुझे पता चला ओल्ड में प्रॉब्लम्स हैं। ये जो सिस्टम था 1986 में, ठीक है, एकेडमिक और करिकुलम का अलग अलग होना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स का डिफरेंशिएट, ठीक है, रोट लर्निंग होना, और उसके बाद मार्क्स बेस्ड सिस्टम होना, ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड एजुकेशन
थी ना, ये ओल्ड एजुकेशन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बनती थी। और जब स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बनती थी तो स्टूडेंट क्या करता था, भाई उससे पता है सोसाइटी को मार्क्स पे आंका जाएगा, तो बच्चा अगर मान लो किसी के माता पिता भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सही है, तो ऑटोमेटिकली या तो बच्चा मेंटल प्रेशर में आके सुसाइड करता था, या बच्चा लाइफ में अपने आप को हारा हुआ मानता था कि भाई मैं लाइफ में हार गया हूँ, भाई अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट के बैक से लेके दिमाग तक भरा हुआ सिस्टम था ये जो ओल्ड एजुकेशन है। एंड इट वाज नॉट एक्चुअली द स्टूडेंट फ्रेंडली, इट वाज एक्चुअली द नॉट प्रॉपर वे से सिस्टम फ्रेंडली भी नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मार्केट एजुकेशन, वॉट एवर द प्रैक्टिकल एजुकेशन इज गिवन टू द इंजीनियर्स एंड वॉट एवर द अकेडमिक एजुकेशन गिवन टू द इंजीनियर्स, that was quite different, and that is why you can see the ratio of employed people. Okay, हाँ, पुरानी एजुकेशन सिस्टम में मैं एक चीज और कहूंगी, जो बजट होता था ना, गवर्नमेंट भी बजट 4.6 के आसपास रखती थी, ठीक है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अब गवर्नमेंट ने एस्टिमेट रखा है शिक्षा पे बजट बढ़ाने का बात की है, और ये शिक्षा पे जो बजट बढ़ेगा ये 6% तक का है, ठीक है, 6% तक का बजट बढ़ाया जाएगा, 6% तक का। और सेकेंड थिंग इज व्हाट गाइस, ये सारा का सारा जो ओल्ड एजुकेशन है कहीं ना कहीं इसका लूप होल्स रहे। इस लूप होल्स के बाद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी। तो एक बार हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरा अच्छे से देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका भी लूप होल्स देखेंगे, तभी हमारा पूरा क्रिटिकली एनालाइज होगा, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखें तो सबसे पहली बात क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी किस में कन्वर्ट हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। एक चीज और याद रखिएगा, इसी के साथ कॉपी में लिख लीजिएगा, एक परख एक इन्होंने असेसमेंट पोर्टल बनाया है, परख। तो इसके अंदर स्टूडेंट को अपना एवेलुएट होता रहेगा कि उसका कितना एवेलुएशन, कितना असेसमेंट है, क्या है, वो सारा का सारा परख के अंदर पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कन्वर्टेड इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, परख असेसमेंट टूल बनाया है। और इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, और 6 क्लास से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। और जो सिस्टम है NEP 2020 का 5+3+3+4 का सिस्टम है, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, और इसके अंदर 3 से 8 में फाउंडेशनल है, 8 से 11 में प्रिपरेटरी है, और 11 से 14 में मिडल है, 14 से 18 में हायर की बात है, मतलब ऑनवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद जो स्कूल है, स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल लेवल पे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 2030 तक 100% बढ़ाया जाएगा। और जो ओपन स्कूल से बच्चे आते हैं, 2 करोड़ के आसपास ओपन स्कूल के बच्चों को कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी मेन स्ट्रीम के अंदर डाला जाए। और हायर एजुकेशन की बात की जाए तो 50% तक इनहेंसमेंट होगा 2035 तक। और एकेडमिक और करिकुलम एक्टिविटी, जो बच्चा खेल कूद करता है, डांस प्रेजेंटेशन होती है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, स्टार्टिंग से इंटीग्रेट किया जाएगा। और बच्चे का सबसे पहली बात, आर्ट साइंस कॉमर्स सारे मल्टी एक ही डिसिप्लिन के अंदर आ गए हैं, चाहे आप आर्ट लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, जो कि नीड ऑफ ओवर है। एवरी फील्ड शुड बी रिस्पेक्टेड। तो सोसाइटी का एक सोचने का तरीका भी चेंज होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने, और एमफिल की जगह पे जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, और PhD है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, वो है, ठीक है। बजट जो है सरकार ने अपना खर्चा भी बढ़ाया है, बजट 6% तक कर दिया है, ठीक है। और एक चीज और है, जो ग्रेजुएशन है ना, जो बीएड होगी, ठीक है, बीएड जो होगी वो बीएड होगी 4 साल की, अब जो होगी बीएड 4 साल की, ठीक है। और बीएड के साथ साथ टीचर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अलग से इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ये भी अलग से रखा गया। और इसी के साथ साथ पाली, ये लिख लीजिएगा सारे पॉइंट्स, पाली, पर्शियन, प्राकृत,
पाली पर्शियन प्राकृत, इसका एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन का बनाया जाएगा, जिसके अंदर बच्चा ये लैंग्वेजेस भी सीख सकता है। और इसी के अंतर्गत गाइस एक चीज और बताऊं आपको, तो 5वीं क्लास तक बच्चा रीजनल लैंग्वेज से पढ़ाई कर सकता है। 5वीं क्लास तक रीजनल लैंग्वेज से पढ़ सकता है। 5वीं क्लास के बाद वो हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत आपको परख भी बता दिया है, ये भी बता दिया। ठीक है। और हाई स्कूल का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बता दिया है। हाईएस्ट स्कूल का 50% 2035 तक बढ़ाया जाएगा। और एकेडमिक और करिकुलम बिटाए, मतलब सॉरी बिटाए बोल रही हूँ, एकेडमिक और करिकुलम एक्टिविटीज दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। एमफिल को हटा के ग्रेड और पीएचडी इक्वल होगी। बजट जो है आपका 6% का हो गया। पाली पर्शियन और प्राकृत के लिए अलग से नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन का बन गया है। बीएड जो है 4 साल की हो गई है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और है, वो ये है कि 4 साल में अगर आपने 1 साल, मान लीजिए आपने डिग्री की है, तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है कि बच्चा आ सकता है, जा सकता है। ये नहीं है कि भाई अब बच्चा की एजुकेशन ड्रॉप हो गई है। और इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर 1 साल बच्चा पढ़ता है उसके बाद ड्रॉप कर लेता है, तो उस बच्चे को बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। अगर बच्चा, मान लीजिए बच्चे ने 2 साल तक कर लिया है, ठीक है, 2 साल तक कर लिया, तो बच्चे को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चा पूरे 4 साल की पढ़ाई करता है तो बच्चे को डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को भी एक तरह से ऐसा नहीं है कि भाई एक बार शिक्षा खत्म हो गई तो उसके बाद बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता है। द बच्चा विल गेट द मोटिवेटेड बाय दिस 1 year बेसिक एजुकेशन एंड फॉर 2 years ही विल गेट द डिप्लोमा। एंड अगर कोई भी बच्चा 4 साल पूरा करता है तो उसको डिग्री भी प्राप्त होगी। ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज होलिस्टिक अप्रोच। ये बच्चे का एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। एंड दिस इज वेरी गुड एंड रेलेवेंट, एज वेल एज आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप मुझसे पूछे मैम मेंस आंसर राइटिंग में व्हाट आर द चैलेंजेस वी शुड राइट, क्योंकि बच्चे को तो क्रिटिकली एनालाइज करके मेंस आंसर राइटिंग करना है। तो अगर क्रिटिकली एनालाइज की बात आए तो आई कैन से दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिड नॉट टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द साइबर स्पेस, द साइबर अटैक, द आईटी एक्ट, the some police reforms etc. they are ignorant in this। और इसी के साथ साथ ग्रेडेड सिस्टम की बात करें, हाँ ये सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, पर कितना ये सक्सेस होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का नजरिया बदलेगा, बच्चे के ऊपर बर्डन कम होगा, सोसाइटी का नजरिया कम होगा, बच्चे पे बर्डन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली नेशनल बिल्डिंग के लिए है। ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बट हम कर रहे हैं क्रिटिकली एनालाइज। तो सबसे पहले क्रिटिकली एनालाइज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, इन सब की बात नहीं की हुई है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम बात करें कि किसी नेशन को डेवलप करना है तो इट शुड बी मॉडर्न एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, सॉरी नॉलेज शुड बी गिवन, इम्पार्टेड होनी चाहिए। तो एक तो उसके साथ साथ प्लस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी कुछ करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे 8वीं के बाद छोड़ देते हैं पर उनका स्किल बड़ा अच्छा है, तो वो बच्चे सीधा स्कूल से ही काउंसलिंग कर दी जाए कि उन बच्चों को स्कूल से ही कि आप आईटीआई में एडमिशन ले लो और वहीं से ही आपको इंटर्नशिप वगैरह कंपनी में कराई जाएगी। तो एक तो ये सिस्टम भी इंटीग्रेटेड में डाल दें। और उसके साथ साथ क्या है, हाँ इन्होंने इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का एक ही सेंटर पूरा बना दिया है। ठीक है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जो एडुकेटर है ना, एडुकेटर को साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडुकेटर जब तक, जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि अगर पढ़ाने वाले का इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो रिसीव कर रहा है दे विल नॉट ग्रास्प द कंप्लीट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो एडुकेटर शुड बी रिवाइटलाइज एजुकेटर शुड बी गिवन द कॉन्टेम्पररी बेस्ड नॉलेज, और उनका रेगुलर बेस पे टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो समवेयर दीज आर द थिंग। और फाइनली अगर मैं पूरे इसका अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन निकाला जाए, सो दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज समवेयर द नेशनल बिल्डिंग एंड इट विल गिव द न्यू वे फॉर द Indian education and would reduce the burden on the minds of the youngsters. Okay, so I hope guys you would like this video. Please guys, if you are new, do the subscribe. Thank you.